اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ، عائشہ، اسد، سعیسہ، غنچہ، فاطمہ، حفیظہ، فریضہ، کسا، زہرا، ثنا، کاظمی، ثانیہ، زہرا، سیدہ فرین، طاہرہ کاظمی اور رئیسہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ. جی ہماری گفتگو آشنائی با فلسفہ میں چل رہی تھی دوسرے درس میں. دوسرا درس کس بارے میں تھا جی؟ دوسرا درس تھا فلسفے کی تعریف یعنی ڈیفینیشن اور اس کے ہسٹری کے بارے میں، اس کی پس منظر کے بارے میں، اس کے تاریخچے کے بارے میں. بتایا تھا کہ فلسفہ عربی ورڈ ہے اور لیٹن زبان میں ایکول ہے. یہ کس کا ہے؟ فیلوسوفیا. کون سا ورڈ؟ فیلوسوفیا. جی یہ دیکھیے دوسرا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے. پچھلے درس میں تو یہ بتایا تھا کہ فلسفہ کس علم کو کہا جاتا تھا، کون کون سے علوم شامل تھے. اب پہلے کسے فلسفہ کہا جاتا، اب کسے، اس درس میں ہی بتایا گیا ہے. بہرحال ہاں تو فلسفہ ایک عربی ورڈ ہے جی اور اس کا ایکول لیٹن زبان میں کون سا ہے؟ فیلوسوفیا. فیلوسوفیا. اور سب سے پہلے یہ سیکراٹ نے، کیا بولتے ہیں آپ لوگ سقراط کو؟ جی سوکریٹیز. جی ہاں انگلش میں سوکریٹیز کہتے ہیں. سب سے پہلے سقراط نے اس ورڈ کو استعمال کیا. کس معنی میں؟ یہ اس فیلوسوفیا ورڈ کو سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ فیلوسوفوس. سب سے پہلے اس ورڈ کو فلسفے کو سقراط نے، جسے سوکریٹیز کے بولتے ہیں، کس معنی میں؟ دوست داشتن حکمت و دانش. علم و حکمت کو دوست رکھنا، چاہنا، پسند کرنا، لائک کرنا. جی علم اور حکمت کو چاہنا. اور اپنے آپ کو اس نے کیا کہا؟ اس ورڈ کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو فیلوسوفوس کہا، یعنی علم و حکمت کو دوست رکھنے والا، علم و حکمت کو چاہنے والا. جی پھر اس کی دو ہسٹری ہم نے پڑھی. ایک تو یونان یعنی گریس کی ہسٹری، گریس میں فلسفے کی کیا ہسٹری رہی ہے، اور یورپ میں کیا ہسٹری رہی ہے. یاد ہے؟ جی آقا. کیا ہسٹری تھی یورپ کی؟ گریس یعنی یونان، پرانے زمانے کے یونان میں جی حکمت دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی. حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت عملی. ٹھیک ہے. حکمت نظری، حکمت عملی. نظری یعنی جس کا تعلق نظریات سے ہے، پریکٹیکل سے نہیں ہوتا. جس کا تعلق نظریات سے ہے، پریکٹیکل سے نہیں. حکمت نظری کو انہوں نے 3 برانچوں میں بٹا ہے. ایک الہیات، دوسرا الہیات، دوسرا ریاضیات، تیسرا طبیعیات. جی الہیات کسے کہا جاتا تھا؟ اصل وجود کے بارے میں جو عقلی بحثیں ہوتی تھی. عقلی بحث کس بارے میں؟ اصل وجود. وجود کیسے کہتے ہیں ہم؟ موجود یعنی کیا، اور اس میں خدا کا وجود، نیچر، ٹھیک ہے، اور نیچر سے ہٹ کے جو وجود ہیں، نان مٹیریل وجود کے بارے میں، جیسے انسان کی روح، ان چیزوں کے بارے میں اس میں بحثیں ہوتی ہیں. ریاضیات میں کون کون سی چیزیں آتی تھیں؟ میتھ، حساب، موسیقی اور حیات. طبیعیات یعنی نیچر. اس میں کیا کیا آتا تھا؟ اس میں کتنے علوم شامل تھے طبیعیات میں؟ حفیظہ، فریضہ. ہاں گلیکسی جانتے ہیں؟
जी आगा। ब्रह्मांड, ये in के बारे में इल्म। खदान, खदान कान का इल्म, ये कान नहीं, सोना जहां से निकलता है, कोयला वगैरह, उनके बारे में इल्म। और पेड़ों वगैरह का इल्म। बॉटनी, बॉटनी यानी पेड़ पौधों का इल्म। और हैवान शनासी, इसमें वो चीजें शामिल थी। इन सब में नजरियाती बातें थी, लेकिन हिकमत अमली भी खुद 3 शाखों में तकसीम होती थी। कौन कौन सी? अखलाक। अखलाक किस बारे में बहस करता है? पर्सनल इंसान की, कि उसे कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना है, उसे कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना है। तदबीर मंजिल। उसके बाद तदबीर मंजिल, यानी हमें घर में एक दूसरे से फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे रहना है, ये सब प्रैक्टिकल से ताल्लुक है ना इसका। जी आगा आपकी आवाज कट गई। जी आपकी कट आवाज कट के आ रही है आवाज। एक मिनट आपकी। जी, अभी ठीक है। लिहाजा इन्होंने ये कहा हिकमत यूनान यानी ग्रीस, यूनान को क्या कहते हैं अभी इंग्लिश में? ग्रीस। ग्रीस, पुराने जमाने की ग्रीस में हिकमत, इल्म और हिकमत 2 हिस्सों में तकसीम होती थी। हिकमत नजरी, हिकमत अमली। हिकमत नजरी कौन से इल्म थे? जिनका ताल्लुक नजरियात से था। हिकमत अमली जिसका प्रैक्टिकल, वो इल्म जो प्रैक्टिकली हैं। हिकमत नजरी में कौन कौन सी चीजें शामिल थी? इलाहियात। इलाहियात में क्या क्या? वजूद के बारे में बहस, मावराए तबियत यानी नेचर से हटके मुजर्रद नॉन मटेरियल मौजूद रूह के बारे में, इंसान की वगैरह, इस चीज के बारे में गुफ्तगू जी, वैसे अक्ली बहसे से, ठीक है जी। नजरियात। और रियाजियात में हिसाब यानी मैथमेटिक वगैरह, मौसीकी, हयात वगैरह आती हैं, सब इसमें नजरियात से ताल्लुक। तबीयत में किहान शनासी, क्या कौन कौन से उलूम आते हैं? किहान शनासी यानी गैलेक्सी के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, और खदान वगैरह के बारे में, खदान जल्दी खदान वगैरह के बारे में, उसके बारे में नजरियात। और बॉटनी, बॉटनी यानी पेड़ पौधों के बारे में इल्म, हैवानात का इल्म, ये सब चीजें इसमें शामिल थी। जी। हिकमत अमली में कौन कौन सी चीजें थी? अखलाक। अखलाक उसमें ये इल्म है कि जो ये दिखाता है, सिखाता है कि इंसान को कैसे रहना है। जी। और राइट बात है, प्रैक्टिकली है कैसे रफ्तारों के बर्ताव से पेश आना है। तदबीर मंजिल, जिसमें इंसान को अपनी फैमिली वालों के साथ कैसे सलूक करना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे घर चलाना है वगैरह। और सियासत मुदुन। ये चीजें इसमें शामिल थी। मुदुन मदीने की जमा है। जी। शहरदारी जिसे कहते हैं, आपस में शहर वालों के साथ कैसे ताल्लुक रखने, कैसे चलाना वगैरह वगैरह। तो ये सब हिकमत कहलाती थी। और इन सबको फलसफा कहा जाता था पुराने यूनान में। और फलसफी उसे कहा जाता था, फैलसूफ, जो इन सबको जानता हो। लेकिन ये पुराने जमाने के उसकी बात है, किसकी? यूनान की, ग्रीस की। लेकिन आप जानते हैं कि सब जैसे जैसे इल्म तरक्की करता गया, ये सब इतने ज्यादा हो गए कि एक शख्स के बस की बात नहीं है इतना कुछ सीख ले वो फलसफी कहलाए। खुद ये इसमें चला जाए तो इसमें खुद ब्रांचेस निकल जाती हैं। खुद एक उसमें इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि खुद इसमें ब्रांच हैं। बॉटनी में निकलेगा, खदान के उलूम में निकलेगा, किस किस में निकले, तो सब एक इंसान के लिए। बख्शिश मौलाना जी फलसफा यानी सोशल है ना? नहीं, फलसफा फिलोसफी इस टाइम मैं बता रहा हूं। इन सबको फलसफा एक कहा, इन सब उलूम को मिला के फलसफा कहा जाता था। इन सब उलूम को, सब्जेक्ट्स को मिला के उस जमाने में फलसफा कहा जाता था। ठीक, अभी बताया तो फलसफा यानी इल्म को दोस्त रखना, फेलोसोफूस यानी फलसफी जो इल्म को, फिलोसोफर जो इल्म को दोस्त रखता हो, इल्म और हिकमत को उसे कहा जाता था पुराने जमाने में। और हिकमत 2 तरह की, नजरी और अमली। नजरियात से ताल्लुक रखने वाली और प्रैक्टिकली इल्म। जो नजरियात से ताल्लुक रखने वाले उलूम में खुद ये इतने हैं, खुद जो प्रैक्टिकली है वो इतने हैं, खुद इनकी ब्रांचें निकल जाती हैं। लिहाजा पुराने जमाने में इन सबको जानने वाले को फलसफी कहा जाता था, और इन सबको मिला के कहा जाता था फलसफा। जी जी। लेकिन जैसे जैसे उलूम और तरक्की करते गए, ब्रांचों में ब्रांचें, शाखे उलूम की बढ़ती गई, तरक्की करती गई। और एक इंसान के बस की इतना कुछ सीखना नहीं था अकेले के सारा एक साथ।
لہذا اب پرانے زمانے میں سب کو فلسفہ، لیکن اب فلسفہ سب کو فلسفہ نہیں کہا جاتا وہاں، اب اسے صرف فلسفہ کہا جاتا ہے. یعنی کسے کہتے ہیں علم فلسفہ؟ جو وجود کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ وجود کسے کہتے ہیں، ہم موجود ہیں تو ہمارا وجود کس طرح کا وجود ہے، کیا وجود مٹیریل ہوتا ہے، نان مٹیریل وجود بھی کوئی ہے دنیا میں، جیسے انسان کی روح ہے، فرشتے ہیں، اللہ کا وجود، ٹھیک ہے. اب اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں عقلی گفتگو ہوتی ہے، عقل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی وجود ایک ہوتا ہے مجرد یعنی نان مٹیریل، ایک وجود ہوتا ہے مادی جو مٹیریل ہوتا ہے، جس کو چھو کر دیکھ کر محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ وجود جو ہوتے ہیں وہ نان مٹیریل ہوتے ہیں جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جیسے روح ہے. ان چیزوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے اب فلسفہ. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. جی یہ تو تھا یونان کی، گریس کی ہسٹری. یوروپ میں فلسفہ کسے کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ یوروپ کی جو درمیانی سینچریز ہیں وہ کتنی سی بتائی؟ 10 6 سے 15. صدیاں. 6 کی شروعات سے سن 6 عیسوی صدی، 6 عیسوی صدی یعنی سن 600 سے کی ابتدا سے، سن 600 کی ابتدا سے سن 1500 کے آخر تک، یعنی تقریباً 10 صدی، 10 سینچری. یہ اسے کہا جاتا ہے درمیانی صدیاں، یوروپ کی مڈل سینچریز. لہذا ان 10 سالوں کی خصوصیت، 10 سال کہہ رہا ہوں، 10 صدیوں کی یہ خصوصیت ہے یوروپ میں کہ جتنے بھی علم کے پڑھنے پڑھانے کے کون تھے، وہ تھے مرکز تھے، یعنی سینٹر تھے، جتنے بھی علم و تعلیم کے سینٹر تھے ان سب پر کلیسا کا ہولڈ تھا. کلیسا یعنی چرچ کے ذریعے سے جو علوم پڑھائے جاتے تھے وہ فلسفہ کہلاتے تھے. اور اس میں کون کون سے علوم تھے؟ لاجک، منطق جسے کہتے ہیں، لاجک ہے جی، الہیات ہے، اخلاق ہے، سیاست ہے، قواعد زبانی، گرامر، یہ 7-8 علوم سبجیکٹ جو ہیں ان کو فلسفہ کہا جاتا تھا، جو چرچ مانتا تھا کہ یہ پڑھائے جائیں، ورنہ ان کو سب کو کہا جاتا تھا. یہ تو تھا ہسٹری کس کی؟ یوروپ کی. کیا ہسٹری تھی فلسفے کی یوروپ میں؟ یوروپ کے جو مڈل سینچریز ہیں، 10 سینچریز جو کہ 6 صدی عیسوی کے شروع سے 15ویں صدی عیسوی کے آخر تک تقریباً 10 صدی بنتی ہیں، ان میں فلسفہ ان علوم کو کہا جاتا تھا جو کلیسائی چرچ کے ذریعے سے پڑھوایا جاتا تھا، پڑھایا جاتے تھے جو علوم. آج جو ہے وہ اب جو یہاں پر اسلام کے بارے میں فلسفے کی ہسٹری، اسلام میں اس کا کیا سابقہ رہا ہے، اسلام میں کب سے آیا، کیسے آیا. جی لائیے. فلسفہ در عالم اسلام و مسلمین، فلسفہ عالم اسلام میں اور مسلمین میں در اواخر قرن دوم ہجری، دوسری صدی ہجری کے آخر میں. دوسری صدی ہجری کتنی بیٹھتی ہے یاد ہے آپ کو؟ سن 200 ہجری. ابھی کون سی چل رہی ہے؟ 1444. تو کتنی بار ہے؟ قرن دوم یعنی دوسری صدی لکھ لیجئے ہجری، دوسری صدی ہجری کے آخر، ہاں تک ابتدا. جی ہجری کی دوسری صدی کے آخر میں فلسفہ اسلام میں، یہ ہیڈنگ ہے، فلسفہ اسلام میں، فلسفی ان اسلام. کب سے ہے یہ؟ اسٹارٹنگ فرام 2 ہجری، نہ اسٹارٹنگ آخر. اچھا. دوسری صدی ہجری، دوسری صدی ہجری کے آخر میں. دوسری صدی ہجری کا آخر پتہ ہے کون سا ہو؟ سن 200 صدی کا آخر، 1900 سے 2000 کے بیچ، سن 2000 کے بیچ. جناب سے 500 چل گئے. ارے 1900 کہہ رہا ہوں، لا حول ولا قوت. جناب اس وقت 1970 ہجری، 100 کچھ سال، 200 سن 200. دوسری ہجری کا مطلب کیا ہے؟ سن 200 ہجری. بولیے 200
सन 200 हिजरी। सन 200 गैबत कुबरा का आगाज कब हुआ था? 556 में। ये इसमें नहीं पूछ रहा, मैं हिजरी पूछ रहा हूँ। 256 या 57 हिजरी में। बोला 256 हिजरी में हुआ है। हाँ 256 हिजरी में क्या हुआ है मुंजा फातिमा? गैबत कुबरा कुबरा का आगाज या सुगरा का? हैं? बहरहाल सन 256। और ये कब से फलसफा? 338 उससे पहले से आया है, उससे पहले से 200 भाई दूसरी सदी सन 200 है ना? जी आगा। सन 200 हिजरी जी हिजरी उर्दू वाले को बोल 90 95 हिजरी तकरीबन, इससे सोचो। यानी आखिरी इमाम की गैबत, बल्कि ये तो 11वें इमाम के जमाने में ना बैठे सन 200 हिजरी, इससे पहले 10वीं 11वीं। बहरहाल तो 200 हिजरी के आखिर में यूनान के बहुत से फलसफियों की किताबें जी अरबी में तर्जुमा हुई। तो पहले कौन सी जबान में थी ना? भाई यूरोप, यूनान, इंग्लिश वगैरह में। इंग्लिश बहुत पुरानी है क्या? तुम्हारा वजूद है, इसका वजूद था। और फलसफा इस्लाम में आया। ठीक है, सन तकरीब दूसरी सदी हिजरी यानी सन 200 हिजरी का आखिर में। ठीक है, दूसरी सदी हिजरी का आखिर कितने से शुरू होगा? 180 के बाद से सन 180 हिजरी। जी आगा जी 9वें इमाम की विलादत है 1995 हिजरी। 1995। देखिए वो भी दूसरी सदी हिजरी का आखिरी है। तो जी। आखिर कितने सालों को कहते हैं? 8-10 साल होते हैं ना हर सदी के आखिर। तो यानी सन 180-85 के बाद से सन 200 हिजरी तक वो आखिरी कहलाएगा दूसरी सदी का। तो ये इमाम की बात 8वें इमाम के जमाने में जाके कहीं। शहादत 203 हिजरी है। किसकी? 8वें इमाम की शहादत तो फिर इसका 203 मतलब फलसफा और पहले पहुंचाइए, फिर और जी। छठे इमाम के जमाने में पहुंचाइए। नहीं छठे इमाम नहीं, छठे इमाम में उनकी शहादत है 148 हिजरी। हाँ नहीं, उसके बाद 7वें इमाम की। 7वें इमाम के उसमें चलेगा वो। उनकी कितने में है? 183। हाँ 183, यानी 7वें इमाम के बाद से 8वें इमाम का जमाना सन दूसरी सदी हिजरी का आखिर कहलाएगा। वहां से उसके बाद से 8वें 9वें इमाम के जमाना समझ लीजिए। उस वक्त यूनान की बहुत से फलसफियों की किताबें अरबी में ट्रांसलेट हुई और इस्लाम में फलसफा वारिद हुआ। ठीक है, जी। सबसे पहले फाराबी। कौन है? फाराबी अफलातून को कहते हैं। फाराबी 338 हिजरी में इंतकाल हुआ इनका। कितने में? 338 हिजरी में। 338 हिजरी में इंतकाल। ठीक है, ये क्या चक्कर हुआ? इसे मुअल्लिम सानी कहा था। फाराबी मुअल्लिम सानी यानी इसे दूसरा मुअल्लिम सानी कहा जाता था। इसका मतलब सोचिए जनाब, मुअल्लिम सानी मगर नहीं, गलत कर दिया। दूसरी सदी हिजरी का आखिर वो नहीं होगा। 197-98 वो दूसरी सदी का नहीं, वो तो पहली सदी का आखिर नहीं, पहली सदी का आखिर है।
पहली सदी का आखिर हुआ, और दूसरी सदी का आखिर बैठेगा 200 कुछ में, 280-90 में, 280-90 में। समझ में आई? जी आगा। हाँ, जी दूसरी सदी आगा। का आखिर 280-90 बैठेगा अब जब सही आ जाना जी 280 से हाँ 280 से शुरुआत होगी दूसरी सदी के आखिर, क्योंकि 300 आता है तो तीसरी सदी शुरू हो जाएगी, जी 20 साल के बाद है नहीं? तीसरी सदी। इसीलिए 338 में मरा है, अगर ये सन 338, वरना मैं ये तो कह रहा कि अगर 180-90 दूसरी सदी की आखिर है तो ये क्या 200 साल 150-200 साल के थे? नहीं, दूसरी सदी का आखिर जो होगा वो कहाँ होगा? 280-90 95 299 तक तकरीबन, फिर तीसरी से शुरू हो जाएगी। नहीं जी। जब उनके भी बाद आखिरी इमाम के, क्योंकि वो 157 है, उसके भी 100 साल बाद तक। नहीं इमाम की जनाब 338 ईस्वी में ना हुई थी, गैबत कुबरा का आगाज कब हुआ था? खत्म जो हुआ जनाब तो 60 में 8 यानी जी 11 थे जी 260 हिजरी 260 हिजरी में क्या है? इमाम हसन की शहादत उनके 260 हिजरी में शहादत है 11वें इमाम की। तो गैबत सुगरा 70 साल लगाइए, 70 जी। साल हुआ तो 338 साल ऐसे हो। हाँ, तो गैबत कुबरा का आगाज था जब ये सबसे पहले ट्रांसलेट होके आई हैं। 338 बताया जाता है। तो सबसे पहले फाराबी सन 338 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। फाराबी जिन्हें मुअल्लिम सानी कहा जाता है, इन्होंने फाराबी ने अफलातून के नजरियात को, अफलातून भाई अफलातून था ना पुराना फलसफी वहां का, यूनान का। फाराबी इस्लाम के थे, ये सबसे पहले इस्लाम में फाराबी ने अफलातून के नजरियात, अफलातून सन 348 हिजरी है कमरी में, कमरी शमसी अलग तारीख है, कमरी यानी ईरानियों की तारीख। अफलातून मुतवफ़ा बोलते हैं, यानी मरा कब? 348 में, 348 अफलातून के, मगर यहाँ पे वो तो लिख दूं किसमें? कमरी यानी मिलादी, सन मिलादी। अफलातून के और अरस्तु को क्या कहते हैं जी? अरस्तु को अरस्तु ही कहते हैं इंग्लिश में। अभी ये वाले इनकी मरने की डेट नहीं है ये इनकी सन की थी उसकी डेट है अरस्तु। एक कौन सा है? 322 सन 322 कमरी मिलादी है। पता है कौन सी सन है? ईसवी है 348 जी। अब क्या होता है? मिलादी वो क्या होता है? ईसवी और काफ से काफ मीम का क्या होता है? कमरी काफ से कमरे में सही कहा जाता होगा। बहरहाल तो जी कबले मसीह बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बीसी। कबले मसीह उस जमाने में कबले का अफलाक, ये तो जनाबी ईसा से पहले की बैठेगी यूनान वाला तो जी आगा। कबले मसीह। अहसन वही का तो सन यानी 348 कबल मसीह, जनाबी ईसा की पैदाइश से 348 साल पहले अफलातून, और अरस्तु 322 साल पहले जनाबे ईसा से। तो सबसे पहले फाराबी ने, जिनका इंतकाल कब हुआ? 338 हिजरी में जी। अभी कौन सी चल रही? 1444 यानी तक 1100 और 1300 38 39 40 406 1106 साल पहले, 1106 साल पहले इनका इंतकाल हुआ मुअल्लिम सानी। तो सबसे पहले इस्लाम में फाराबी ने अफलातून के और अरस्तु के नजरियात को
नजरियात बयान किए। ठीक है, लिखा। जी आका। तो फलसफे में इस्लाम की हिस्ट्री क्या है? दूसरी सदी हिजरी के आखिर में, यानी सन 280 और 2 से 299 के बीच में वही बैठेगी तकरीबन। ठीक है, उस वक्त यूनान के बहुत से फलसफियों की किताबें अरबी में ट्रांसलेट हुई तो इस्लाम में दाखिल हुई। और सबसे पहले काम शुरुआत किसने की? सबसे पहले फाराबी, जो सन 338 हिजरी में जिनका इंतकाल हुआ। तो अगर 38 में इंतकाल हुआ तो पैदा तो कम से कम 70-80 साल पहले हुए होंगे, इतनी तो उम्र होगी, तो वही बैठेगी दूसरे का आखिर। फाराबी ने सबसे पहले अफलातून और अरस्तु के नजरियात, बोलिए, बयान किए। बयान किए। लिख लिया बेटा? जी आका। अभी फलसफी वैसे नहीं शुरू हो रही है, कभी आप सोचिए कैसा फलसफा है। अभी तो तारीख क्या है, उसका हिस्ट्री है, उसके बाद से थोड़ी बार से बात। ये तो वो सवाल, ठीक है, फाराबी के बाद ये तो वो सवाल है जिसके पीछे हम जाते हैं। दाई के हवाले पीछे। हाँ, फाराबी के बाद फाराबी के बाद इब्ने सीना। इब्ने सीना को नाम सुना है? ये नाम मैंने ही पढ़ा है, फारसी में आया है। इब्ने सीना। इधर इल्म शीवी बोला, नहीं बोला ना, वो तो जाबिर इब्न हय्यान। इब्ने सीना ये फलसफी हैं, वो है केमिस्ट्री। इब्ने सीना 428 हिजरी, कितना? 428 हिजरी में रहे हैं। 428 हिजरी, 428 हिजरी। उनके बाद इब्ने सीना ने अरस्तु को क्या कहते हैं? कुछ और नाम लेते हैं क्या? नहीं, अरस्तु ही सही है। मंतिक यानी लॉजिक और फलसफे को की फलसफे की तशरीह की। ठीक है, देखिए हर नजरियात में दो मकतब, दो मदर वो थे। दो मकतब यानी जी, दो मकतब यानी दो राय। यानी एक मकतब को फलसफा मशा कहा जाता था कि अगर मेरा इस तरीके के नजरियात हैं तो मैं क्या कहलाऊंगा कि ये फलसफा मशा को मानने वाले हैं। फलसफा मशा, इस्लाम से खारिज मत, इस्लाम में जाहिर हुआ। ठीक है, तो मैं फिलहाल इतना लिखवा देता हूं, बाकी कल लिखवाऊंगा। ये याद रखना का फलसफे के तीन मशरब है, यानी तीन नजरियात। एक नजरियात जो है वो मसलन एक खास तरीके के आपके नजरियात है, मसलन तो फलसफा मशा है। एक फलसफा इशराक, क्या है? फलसफा इशराक कहलाता है, उनके नजरियात अलग हैं जी। लेकिन ये उन लोगों के थे, लेकिन अपने इस्लाम में अपना एक मकतब जो बनाया वो मुल्ला सदरा ने बनाया, जिसे हिकमत मुतालिया के नाम से जाना गया। ठीक है जी। अब मुसलमानों में हिकमत मुतालिया ही को मानने वाले, उस मकतब को मानने वाले ही ज्यादा हैं। इनको नहीं मानता मशा वालों को या इशराक वालों को कि भाई अफलातून का जो नजरिया है वो फलसफा मसलन फला का है जी, या उसका नहीं। और हिकमत मुतालिया ही के मानने वालों में से अल्लामा तबातबाई जिनकी तफसीर अल मीज़ान है। तफसीर वो इस तरीके की लिखी गई है जो
فلسفی بحثیں چھیڑی گئی ہیں اس کے اندر. قرآن کی تشریح کی ہے انہوں نے، علامہ طباطبائی نے تفسیر کی ہے، لیکن وہ تفسیر کس اعتبار سے ہے؟ فلسفی اعتبار سے. ٹھیک ہے، باقی کل لکھوائیں گے، ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، جی آپ آپ کہیں گے ٹائم ہو نہیں گیا، زیادہ ہو گیا. چلیے باقی کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.